Assalamu alaikum to everyone and Bismillahir Rahmanir Rahim. How are you all? I hope that you are doing great. So students, what are we going to study? We are going to study a new topic that is known as chemical symbol, and the name of our chapter is periodic table. In the last week or the last topic what we have been studied about periodic tables, about scientists who have been developed and how they are characterized and how they give their different reviews. So what are we going to study today? What we are going to study today is chemical symbol, atomic number, mass number, and not last but the least, the arrangement of the electron. So what basically is chemical symbol? In periodic table we have to be studied such different things that you have people known about how in periodic table elements have been characterized and how they have been seen and how they have been pronounced, how they have been used, and how they have been kept in periodic table through number wise. So let's just begin. What is chemical symbol? Each element has its own unique symbol. Each element has its own unique symbol. सबका अलग अलग एक unique symbol होता है. A sort of chemical शॉर्ट हैंड जिसको हम लोग उस केमिकल फार्मूला या उस केमिकल सिंबल को हम शॉर्ट हैंड यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं प्रोडक्ट टेबल में, जिससे हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकें पूरी दुनिया में. ठीक है. A chemical symbol can be capital letter. वो जो कैपिटल सिंबल जिसको शॉर्ट हैंड में हम लोगों ने लिखा है या जिसका यूनिक सिंबल है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डोनेट करते हैं. फॉर एग्जांपल C is a symbol of carbon. C which is the symbol of element carbon or a capital letter followed by a lower case letter. ठीक है. Carbon is donated by C. ठीक है. In periodic table with a lowercase letter. Now calcium is donated by Ca. For example, has Ca, it is donated by its chemical symbol Ca in all over the world. It is being named by Ca in the periodic table, which shows which comes from the first two letter of its English name. ठीक है. कैल्शियम Ca is the first two letter of the element. ठीक है. Carbon is the element in which Ca is the chemical symbol. ठीक है. Now iron on the other hand has symbol of Fe, which comes from its Latin word. Fe comes from its Latin word name ferrum. ठीक है. And we also studied it ferrous and ferric. It's been characterized in other ways. So iron has been its symbol name that is known as Fe. Now other elements have symbols made up of their letters and other letters in its name. ठीक है. elements को भी other elements को भी ऐसे ही characterize किया है according to the first letters, okay, or its Latin numbers. Now for example magnesium first two letters के बजाय हम लोगों ने इसको Mg से डोनेट करते हैं. ठीक है. ज़रूरी नहीं है फर्स्ट लेटर हो, ज़रूरी नहीं है लैटिन हो. ठीक है. हम लोग Mg को मैग्नीशियम से जो है सिंबल से लिखते हैं. एंड जिंक को Zn से लिखते हैं. आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज आर डोनेटेड बाय द नेम बाय ऑफ केमिकल सिंबल इन पीरियोडिक टेबल एंड अदर यूजेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है. नाउ कार्बन को C से, कैल्शियम को Ca से, आयरन को Fe से, मैग्नीशियम को Mg से, जिंक को Zn से हम डोनेट करते हैं इन पीरियोडिक टेबल. नाउ एटॉमिक नंबर. व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? periodic table में elements characterized होते हैं according to their symbols, according to their atomic number, according to their mass number. ठीक है. now how arrange कैसे होते हैं, उनका एक arrangement होता है. we will study it later. now what is atomic number basically is? ठीक है. the number of proton, as we know that electron, this is the shape of electron. It contains one nucleus. ठीक है. nucleus contain one proton and one neutron inside it and electron around its shell, and there are different layers of shell in which elements are characterized according to their atomic number or mass number. ठीक है. electron have negatively charged, proton have positively charged, and neutron has no charge. So what are we saying? What is atomic number? The number of proton. What is proton? Proton is present in an atom inside the nucleus.
The number of proton in an atom is called its atomic number. What is proton? The number of protons in an atom is called atomic number. What is the atomic number? Atomic number can be shown by the number of protons in an atom. ठीक है, each element has different atomic number, as each elements have different name, different mass number, different atomic number. ठीक है, different arrangement, so we can say that it has different atomic number. Elements contains neutral atoms. ठीक है, एटम कंटेन न्यूट्रल एटम्स. किसी के ऊपर एटम्स में क्या होता है, न्यूट्रल एटम होता है, पॉजिटिव भी होता है, न्यूट्रल नेगेटिव भी होता है, तो जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं. ठीक है, सिंस प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिवली चार्ज, जो हम हमारे लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज. ठीक है, there must be an equal number of negatively charged electrons, so the atomic number also tell us how many electrons the atom has. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से शो करता है, हैविंग पॉजिटिव नंबर. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज, जो हमें बताता है कि एटॉमिक number tell us that how many electrons are there in an atom. Now what is mass number, right? mass number क्या था, proton and neutron have approximately the same mass. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. ठीक है, इनका बहुत छोटा मास होता है, इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम नेकेड आई से नहीं बल्कि हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर मास नहीं होता क्योंकि बहुत स्मॉल होता है, इनका नेग्लिजिबल होता है. ठीक है, we will study the mass of the proton, electron and neutron. Now इन दोनों का मास सेम होता है. इलेक्ट्रॉन हैव अ मास सो स्मॉल, इलेक्ट्रॉन्स का मास भी बहुत स्मॉल होता है एंड इट कैन बी इग्नोर. ठीक है, इसको इग्नोर किया जाता है. द मास ऑफ एन एटम्स डिपेंड अपॉन हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इट हैज़. मास नंबर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास पर. ठीक है, और एटॉमिक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करता है. ठीक है, मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मास. ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता, इसको इग्नोर किया जाता है. बेसिकली होता है लेकिन बहुत कम. ठीक है, आप इसकी वैल्यू आगे पढ़ेंगे. नाउ मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स. व्हाट इज़ केमिकल सिंबल, जिसको हम डोनेट कर सकते हैं, CaZnMg, कार्बन for C. ठीक है, आयरन for Fe, atomic number for proton, and this is the number of proton plus number of neutron. Now mass number, now this is carbon atom, 6 and 6 is the atomic number, and you can number of protons is 6. and what is mass number, mass number is number of proton plus number of neutron. so number of proton is 6 and number of neutron is 6, so 6 plus 6 is equal to 12. so all carbon atoms have 6 protons in the nucleus. This carbon atom has 6 proton and 6 neutron, giving a mass number of 12. 12 is the mass number of carbon because it has 6 proton and 6 neutron, and the mass number, atomic number is 6, and the mass number is 6 plus 6, which is equal to 12. Now the arrangement of electrons. Look how electrons are arranged in an atom. ठीक है, और in a periodic table. Now Bohr and Rutherford, now these two are the scientists that work out on the theoretical model for the atom. थ्योरी पे काम किया था एटम की, in which electrons are arranged. क्या इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, in a layer around the nucleus. न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे. ठीक है, each layer और शेल कैन होल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. डिफरेंट शेल्स होते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस के बाद डिफरेंट शेल्स होते हैं, 2 भी, 6 भी, 8 भी, 10 भी, कितने भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द मास नंबर और एटॉमिक नंबर डिपेंड करते हैं. ठीक है, ईच लेयर हैज़ शेल और होल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. द फर्स्ट शेल होल्ड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 2. फर्स्ट शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते. ठीक है, इन्होंने यहाँ पर हीलियम की एग्जांपल लिया है. हीलियम क्या है, He से हम डोनेट करते हैं, कैपिटल He से. इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है, इसमें 2 तो हमारे पास नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, 2. क्यों, क्योंकि हीलियम हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में नंबर 2 लाइन पे पड़ा हुआ है. ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोजन होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, क्योंकि इसमें 1 प्रोटॉन होता है, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इसका जो होता है एटॉमिक नंबर 2 होता है. ठीक है, तो 2 एटॉमिक नंबर, इसमें 2 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, 2 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं. ठीक है, सो
ये हमारे पास हीलियम की एग्जांपल हो गई। द फर्स्ट शेल कैन बी मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स, हर एक फर्स्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में 1 होता है, हीलियम में 2 होते हैं, और फर्दर ऑन हम लोग इंक्रीज़ करते जाते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट एरिया में यानी कि फर्स्ट शेल को एल से हम डोनेट करते हैं, जिसमें हमारे पास कैपेबिलिटी 2 की है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं आ सकते। द सेकंड शेल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। कम हो सकते हैं पर ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। इसमें शेयरिंग भी होती है, ठीक है, शेयरिंग भी होती है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होती है, आयनिक बॉन्ड, ये सब आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेकंड शेल में कितने होते हैं? 8। फर्स्ट शेल में 2 से ज़्यादा नहीं होते, सेकंड में 8 से ज़्यादा नहीं होते। थर्ड में क्या होता है? शेल कैन होल्ड मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में 18, थर्ड में 18 होते हैं, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, ठीक है। ये फोर्थ शेल को हम एल से डोनेट करते हैं, इसको हम एम शेल से, इसको एन से, ओ पी क्यू आर एस टी एंड फर्दर, ठीक है। बट इट फुलफिल अप द 8, ठीक है, 88 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल कैन होल्ड 18 इलेक्ट्रॉन बट इट फुल फिल्स अप टू 8, ठीक है। बट ये 18 इसमें होल्ड करते हैं, लेकिन इसमें भी हम लोग सेकंड शेल में भी हम लोग 8 को ही करते हैं, यानी कि 2, 8, 18, ठीक है। 2, 8, 2, 8 और फिर 8, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग 8 ही लाते हैं, होती इसकी मैक्सिमम पावर कैपेबिलिटी 18 की है, ठीक है। और उसके बाद 32 द इलेक्ट्रॉन बिल्ड अप फॉर द फर्स्ट शेल फिलिंग ईच वन अंटिल ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन place, ठीक है। दिस मीन दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोज टू द न्यूक्लियस एज दे कैन बी द टेबल शो द इलेक्ट्रॉन अरेंज फ्रॉम द फर्स्ट 10 एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में कैसे होते हैं? हाइड्रोजन, फर्स्ट इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। इसको सिंबल जिससे हम डोनेट करते हैं, हाइड्रोजन को H से, हीलियम को He से, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, कैपिटल, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne. Now this is the symbol. Now what is the atomic number? Number of protons present in an atom is known as atomic number. हाइड्रोजन 1 नंबर पे पड़ा हुआ है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, इसमें 2 है, ये 3 पे पड़ा हुआ है 4, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 है, 5, 6 एंड अप टू 10, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबरिंग इसकी प्रोडक्ट टेबल में ऐसे है, ठीक है ना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल में पड़े होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर मास नंबर, एटॉमिक नंबर और वट एवर, ठीक है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन ही शेल में आएगा, ठीक है। इसमें ये हीलियम का है, अगर हम हाइड्रोजन का लें तो उसमें सिर्फ 1 होगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास है ही सिर्फ 1। हीलियम का लेंगे तो हीलियम में 2 होंगे, हीलियम, लिथियम में लेंगे तो लिथियम में 3 होंगे, इधर इसमें 2 होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। एक और लेंगे हम शेल, उसमें एक और होगा तो 3 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास लिथियम होगा। फिर बेरिलियम में क्या होगा? 2। बेरिलियम में क्या होगा? फर्स्ट एल शेल में क्या होगा? 1 होगा, दूसरे शेल में 2 होंगे, ठीक है, तो 4 पूरे हो जाएंगे। फिर इसमें क्या है? बोरॉन में क्या होगा? फर्स्ट शेल में 2, इसमें 3, तो 3 + 2 5। इसी तरह फर्स्ट में 2, 3 से ज़्यादा जाता जाएगा तो इसमें 5, फिर इसमें 6, फिर 7, फिर 8 से ज़्यादा इसमें हम नहीं ला सकते। 8 के बाद हम न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल बनाएंगे जिसमें हम लोग अरेंज करते जाएंगे, ठीक है। नो, फर्स्ट शेल में क्या होगा? 1, ठीक है, इसमें 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे, इसमें सब में 2 होंगे, ठीक है। फर्स्ट शेल में हमारे पास हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सेकेंड शेल में हमारे पास कितने आते हैं? मैक्सिमम हमारे पास 8 आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ देयर मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन में एक ही है तो इसमें 1 आएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम उनको छोड़ देते हैं, हम आते हैं डायरेक्ट लिथियम से, ठीक है, क्योंकि इसमें इनकी कन्फिगरेशन जो होती है इतना जो है उसमें काम नहीं। तो सेकंड शेल, जब हम सेकंड शेल, हाइड्रोजन का भी फर्स्ट शेल नहीं होता और हीलियम का भी नहीं होता, ठीक है। तो इसको छोड़ के थर्ड पे आते हैं लिथियम। लिथियम का जो होता है सेकंड शेल होता है। लिथियम क्या है? 3। लिथियम के पास नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन 3। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 1 एक और शेल में जाएगा। इसमें क्या होगा? 2 जो होंगे एल शेल में होंगे और 2 दूसरे शेल में होंगे, ठीक है, ऐसे। तो 1, 2 सेकंड शेल में कितने जाएंगे? इसमें लिखा हुआ है, इसमें सेकंड शेल में 1 जाएगा, इसमें सेकंड शेल में 2 जाएंगे, इसमें सेकंड शेल में 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। सो दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन। आप इसको ड्रॉ करें, ये बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो सो यू कैन आस्क मी और यू कैन फाइंड इट ऑन इंटरनेट, ठीक है। नाउ दिस इज द योर क्वेश्चन। नेम द 3 एनी टाइनी पार्टिकल विच मेक अप ऑफ एटम्स। राइट द चार्जेस, ठीक है, अलॉन्ग साइड ईच वन।
write down the nucleus. What does nucleus contain? Proton एंड न्यूट्रॉन. ठीक है. वेयर आर द इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन एन एटम. एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? शेल में होते हैं. एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रॉन टेक अप मोस्ट ऑफ द एटम स्पेस. ठीक है. इलेक्ट्रॉन टेक मोस्ट ऑफ द एटम्स इन स्पेस, ये भी बताना है ना मेरे, तो ये मुझे लगता है इसमें नहीं है, आपको इंटरनेट से ढूंढना पड़ेगा. या लास्ट टॉपिक से सजेस्ट वाई साइंटिस्ट यूज़ केमिकल सिंबल्स, या भी आपको लास्ट से मिलेगा ताकि ये आसानी हो सके. ठीक है. ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग इसको यूज़ करते हैं. एक्सप्लेन दिस टर्म्स, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इट इज़ द आंसर, राइट इट डाउन. सो स्टूडेंट्स, आई होप ये आप लोगों ने टॉपिक एंजॉय किया होगा. सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.